একটা খুব সুন্দর জঙ্গল ছিল। আর ওই জঙ্গলের মধ্যে সব পাখিরা একসঙ্গে মিলে বসবাস করত। তারা ওই জঙ্গলে খুব সুখ শান্তিতেই বসবাস করছিল, কারণ ওই জঙ্গলে অনেক শান্তি ছিল আর কোনো শিকারিও আসতো না তাদের শিকার করার জন্যে। আরে বন্ধুরা, তোমরা দেখেছো আমরা এই জঙ্গলে বসবাস করে কত শান্তিতে আছি? এই জঙ্গলে তো কোনো শিকারি আসে না। হ্যাঁ টুনি পাখি, তুমি ঠিক কথাই বলেছো। এই জঙ্গলে তো আমরা খুব সুখ শান্তিতেই আছি, কেননা আমাদের দানা খুঁজতে অন্য কোনো জঙ্গলেও যেতে হয় না। দানা তো আমরা এদিক ওদিক তাকালেই কত দানা পড়ে থাকতে দেখি, আর আমরা সেগুলো খেয়ে আমাদের খিদে মিটিয়ে নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে তো আমাদের এই জঙ্গলে কোনো জীবজন্তুও থাকে না যারা এসে আমাদের উপরে হামলা করবে। আমরা তো খুব খুশিতেই আছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, অনেক গল্প হয়েছে, এখন চলো যার যার কাজে চলে যাই। আমরা গিয়ে দানা খুঁজি, কেমন? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধুরা, টুনি পাখি ঠিকই বলেছে, চলো আমরা সবাই যার যার মতো দানা খুঁজে আসি। এই কথা বলে কালু কাক আর তোতা পাখি দুজনে মিলে একসঙ্গে যায় দানা খোঁজার জন্য। তখনই ওই তোতা পাখি নিচে পড়ে থাকা একটা দানা দেখতে পায়। কালু কাক আর তোতা পাখি সেই দানাটাকে দেখে সেইখানে চলে আসে। আরে তোতা ভাই, এইখানে তো একটা দানা পড়ে আছে, কিন্তু আমরা তো দুইজন। এখন তুমিই বলো, এই দানাটা তুমি নেবে না আমি নেব? কালু কাক ভাই, এই দানাটা তুমি নিয়ে নাও, আমি কোনো অন্য একটা দানা খুঁজে নেব। আরে না না তোতা ভাই, তোমাকে দানা খুঁজতে হবে না, তুমি বরঞ্চ এই দানাটা নিয়ে যাও, আমি একটা অন্য দানা খুঁজে নেব। আরে না না কালু কাক ভাই, কোনো ব্যাপার না, তুমি তো বড়, তাই তুমি এই দানাটা নিয়ে যাও। আরে না না তোতা ভাই, তুমিই বড়, তুমি নিয়ে যাও এই দানাটা। আরে কালু কাক ভাই, আমি যখন বলেছি তুমি এই দানাটা নেবে, তাহলে তুমিই নেবে। কালু কাক আর তোতা পাখি সেই দানাটাকে নিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করে দেয়। ঠিক তখনই সেইখানে একটা বুলবুলি পাখি এসে সেই দানাটাকে উঠিয়ে নিয়ে সেইখান থেকে চলে যায়। আরে কালু কাক ভাই, ওই বুলবুলি তো আমাদের খাবারটা নিয়ে চলে গেল, এখন আমরা কি খাবো? তাতে কি হয়েছে, বুলবুলি নিয়েছে তো, বুলবুলিও তো আমাদের বোন হয় তাই না? ও নিয়ে গেছে, নিয়ে যাকগে, আমরা বরঞ্চ অন্য কিছু দানা খুঁজে নেব। এমন ভাবে জঙ্গলের সব পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে মিলে ঝুলে থাকতে লাগে। এরপরে রাত হয়ে যায় আর জঙ্গলের সব পাখিরা তাদের নিজেদের বাসার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ঠিক তখনই সেই গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে। আরে গাছ ভাই, তুমি দেখেছো এই জঙ্গলটা কত সুন্দর, আমাদের এখানে কেউ জ্বালাতনও করে না। হ্যাঁ গাছ ভাই, এই জঙ্গলটা তো সুন্দরই আছে, আর তার উপরে এই জঙ্গলে কোনো কাঠুরিয়া আসে না, আর আমাদেরকে কাটতেও আসে না, তাই না? সে তো তুমি বললে, তাহলে বলো দিনের বেলা তোমার দিনটা কেমন যায়? আর বলো না গো, দিনের বেলাটা আমার একদমই পছন্দ হয় না, সূর্যটা তো আমাদের মাথার উপরেই থাকে আর খুব গরম লাগে, আর সেই শান্তি পাই রাত্রেবেলা গিয়ে চাঁদের মিষ্টি আলোতে। আরে গাছ ভাই, শান্তি আর কোথায় পাই বলো তো? এই যে আমাদের উপরে যে বাসা বানিয়ে পাখিগুলো থাকে, এরা তো আমাদেরকে বড্ড জ্বালায়। এরা তো এমনি এমনি আমাদের গাছের ডালের উপরে বাসা বানিয়ে রয়েছে, আর তার উপরে আমাদের উপরে পটিও করে দেয়, আর এই পটি নিয়ে তো আমাদের সারাটা বছরই থাকতে হয়। সেই কবে বর্ষাকাল আসবে, তখন বৃষ্টি হবে, আমরা একটু পরিষ্কার হই। হ্যাঁ ভাই, তুমি একদমই ঠিক কথা বলেছো, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, এই পাখিগুলোকে আর আমি আমার গাছের উপরে বাসা বেঁধে থাকতে দেব না, আমি তো এক্ষুনি এদেরকে বাসা থেকে নিচে ফেলে দেব। হ্যাঁ ভাই, আমিও এমনটাই করব, আমার উপরে এরা পটি করে খুব জ্বালায়, আমিও এক্ষুনি এদেরকে নিচে ফেলে দেব। এইসব কথা বলতে বলতে সমস্ত গাছগুলো খুব রাগ হয়ে যায়, আর রাগ হয়ে সমস্ত গাছগুলোকে বলতে থাকে, আরে ভাইরা বন্ধুরা শোনো, আজকের পরের থেকে কোনো পাখিদেরকে আমরা আমাদের ডালের উপরে বসতে দেব না। যদি কেউ বসতে আসে অথবা বাসা বানাতে আসে, তাহলে আমরা তখনই তাদেরকে নিচে ফেলে দেব, কেমন? তোমরা তো দেখেছো আমাদের উপরে কত অত্যাচার করে এই পাখিগুলো, ওরা আমাদের উপরে পটি করে আর তারপরে আমাদের উপরে একটু জল পর্যন্ত দেয় না, আমরা এসব নোংরা নিয়েই থাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ গাছ ভাই, তুমি তো একদম ঠিক কথাই বলেছো, আমরা তো এটা আগে কখনো ভেবে দেখিনি। এখন আমার উপরেও যদি কোনো পাখি বাসা বানাতে আসে, তাহলে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিচে ফেলে দেব। তাহলে চলো ভাইরা, আমাদের গাছের উপরে যেই সমস্ত পাখিগুলো এখন ঘুমিয়ে আছে, আমরা সকলে তাদেরকে ফেলে দিই। এই কথা বলে সবগুলো গাছ ভীষণ জোরে জোরে নড়াচড়া করতে থাকে। ঠিক তখনই সেই পাখিগুলো বাসা সমেত নিচে পড়ে যায়। এমন ভাবে রাত কেটে যায়। সকালবেলা তারা সবাই উঠে দেখে নিচের মধ্যে তারা পড়ে আছে। আরে আরে বন্ধুরা, এটা কি হয়ে গেল? আমরা তো গাছের ওপরেই ছিলাম, আমরা নিচে কি করে এলাম? আমাদেরকে কে ফেললো? আরো দেখো, আমরা তো পড়েছি, তার সঙ্গে আমাদের বাসাগুলোকেও কারা যেন ফেলে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ টুনি পাখি, আমাদের সঙ্গে কে এমনটা করলো? আমরা কখন নিচে পড়লাম সেটা তো বুঝতেও পারলাম না। আরে বাপ রে বাপ,
আমার তো একটা ডিমও ভেঙে গেছে। আরে কার এত বড় সাহস যারা আমাদেরকে এইভাবে নিচে ফেলে দিল? যদি সাহস থাকে তাহলে আমার সামনে আসুক। যদি একবার আমার সামনে আসে না তাহলে আমি ওকে মেরে মেরে ওর চাটনি বানিয়ে দেব। এই কালু কাক, তুই আমার চাটনি বানাবি? আচ্ছা বানা দেখি কেমন সাহস তোর। আমি ফেলেছি তোদের বাসা। শুনে রাখ তোরা সবাই, আজকের পরের থেকে তোরা কেউ আমাদের গাছের উপরে একদম বসবাস করতে পারবি না, আর এটাই তোদের শাস্তি। কিন্তু গাছ ভাই, তোমরা এমনটা আমাদের সঙ্গে কেন করছো বলতে পারো? হ্যাঁ হ্যাঁ গাছ ভাই, কি হয়েছে বলো না, আমাদেরকে কেন এমন শাস্তি দিচ্ছ বলো। অত কিছু বলতে পারবো না, যদি থাকতে হয় তাহলে এই নিচ দিয়েই তোমরা বাসা বানিয়ে থাকো। আমাদের ডালের উপরে তোমাদেরকে আমি আর বাসায় বাঁধতে দেবো না। আরে গাছ ভাই, এমন শাস্তি দিও না। আজকের পরের থেকে তোমার সঙ্গে আমরা কোনো খারাপ ব্যবহার করব না। আর আমাদের যদি পটি পায় তাহলে আমরা অন্য কোথাও গিয়ে পটি করে আসবো। তোমাদেরকে আর নোংরা করব না, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। না, আমি যখন না করেছি তবে না, আমি তোমাদেরকে আর কখনোই আমাদের ডালের উপরে বাসা বাঁধতে দেব না। এখন থেকে তোমরা নিচেই থাকো। ওই গাছগুলোর মুখে এই সমস্ত কথা শুনে ওই পাখিগুলো খুব দুঃখী হয়ে যায়। এরপরে তারা নিজেদের বাসা সেই গাছের নিচে দিয়ে পুনরায় বানিয়ে সেইখানেই থাকতে লাগে। কিন্তু ওই পাখিগুলোর নিচে বসবাস করতে একদমই ভালো লাগছিল না। আরে টুনি বোন, আমার যে নিচে থাকতে একদমই ভালো লাগছে না, আমি যে ওই গাছেই থাকতে চাই। হ্যাঁ টুনি বোন, ওই তোতা ঠিকই বলেছে, আমাদের ওই নিচের মধ্যে একদম ভালো লাগছে না, আমরাও গাছেই থাকতে চাই। আমি এখন কি করতে পারি বলো তো? আমার হাতে তো কিছুই নেই। আমরা সকলে মিলে যে ওই গাছগুলোকে একদম নোংরা করে দিয়েছি, ওই জন্য যে ওরা খুব রেগে আছে। আমার মনে হয় ওই গাছগুলো এতটাই রেগে আছে আর কখনো হয়তো ওরা আমাদের ওই গাছের উপরে একদমই থাকতে দেবে না। আরে টুনি পাখি, তুমি এমন করে বলো না, আমি যে আর এইখানে একদমই থাকতে পারছি না। এমন ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। ওই সবগুলো পাখি ওই জমিতেই থাকতে লাগে। একদিন তোতা পাখি বাইরে চলে যায় খাবার খোঁজার জন্য, আর কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরে এসে বলতে থাকে, আরে টুনি পাখি, কি হয়েছে জানো? আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম খাবার খোঁজার জন্যে, আর দেখি কত কাঠুরিয়ারা এসেছে কাঠ কাটার জন্যে। সমস্ত গাছের থেকে কাঠগুলো কেটে কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আরে তোতা পাখি, তুমি এটা কি বলছো? সত্যি সত্যি কি কাঠুরিয়ারা এসেছে কাঠ কাটতে? তাহলে তো আমাদেরকেও কেটে ফেলবে। এ বাবা, আমাদেরকে কেউ বাঁচা, আমরা বাঁচতে চাই, আমরা মরতে চাই না। আরে গাছ ভাই, তুমি একদম চিন্তা করো না, আমরা সবাই আছি তো, আমরা ঠিক তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেব। তোমরা তো এত বছর তোমাদের গাছের ডালের উপরে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছো, তাই তোমরা চিন্তা করো না, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেব। আরে আরে পাখি ভাইরা, তাড়াতাড়ি চলো জঙ্গলের দিকে, আর ওই কাঠুরিয়াগুলোকে এই জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দিই আমরা সকলে মিলে। এরপরে সমস্ত পাখিরা চলে যায় ওই জঙ্গলের মধ্যে। তখন তারা কোথাও গিয়ে কাঠুরিয়াদেরকে দেখতে পায় না। তখন টুনি পাখি তোতাকে বলতে থাকে, আরে তোতা ভাই, তুমি তো বলেছিলে এইখানে সেই কাঠুরিয়াগুলো আছে, কিন্তু এইখানে তো কেউই নেই। আরে টুনি বোন, আমি তোমাকে না মিথ্যে কথা বলেছিলাম, কারণ এই জঙ্গলে কোনো কাঠুরিয়াই আসেনি। আর আমি মিথ্যে কথা এই কারণেই বলেছিলাম যাতে করে ওই গাছেদের মনে আমরা জায়গা বানাতে পারি। আরে তোতা ভাই, এই মিথ্যে কথা বলে আমরা গাছেদের মনে কিভাবে জায়গা বানাতে পারবো বলো তো? তার উপায়ও তো আছে। এখন আমরা সকলে মিলে ওই গাছেদের কাছে যাব, আর গিয়ে বলবো আমরা সমস্ত কাঠুরিয়াগুলোকে জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাহলেই তো এই গাছেরা আমাদেরকে ভালোবাসবে, আর ভালোবেসে তাদের ডালের উপরে আমাদেরকে থাকতে দেবে। আরে বাহ তোতা ভাই, তুমি তো খুব ভালো কথা বলেছো। এমন ভাবে যদি আমরা গিয়ে বলি তাহলে তো অবশ্যই ওই গাছেদের মনে আমাদের জন্য জায়গা হবে, আর ওই গাছেরা আমাদেরকে থাকতে দেবে। এই সমস্ত কথা বলে সমস্ত পাখিরা ওই গাছের কাছে চলে যায়। আরে পাখিরা, কি খবর তোমাদের? তোমরা বলো, সেই কাঠুরিয়াগুলো এই জঙ্গল থেকে চলে গেছে তো? তারা আমাদেরকে আর কাটতে তো আসবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ গাছ ভাই, আমরা ওই কাঠুরিয়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তাও আবার মেরে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজকের পরের থেকে ওই কাঠুরিয়াগুলো এই জঙ্গলে আর কখনো আসবে না কাঠ কাটতে। আরে পাখিরা, আমি তো তোমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, তোমরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। এখন থেকে তোমরা সকলে আমাদের ডালের উপরে বসবাস করতে পারো, আমরা আর কখনো কিছুই বলবো না। এরপরে থেকে জঙ্গলের সমস্ত পাখিরা সেই গাছের উপরে গিয়ে আবার বাসা বাঁধে, আর সেইখানেই তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। एक दिन बारिश और तूफान की रात में टोना और टूनी एक बड़ा सा पेड़ को ढूंढ रही थी। तभी अचानक वो टोना और टूनी एक तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ को देख पाती है। टोना, क्या तुम उस बड़ा सा पेड़ को देख रही हो? हाँ, मैंने तो देखा। अरे टोना, चलो ना उस पेड़ की डाली के ऊपर, जब बारिश रुक जाएगी
तब हम और तुम मिलकर उस पेड़ की डाली के ऊपर एक घोंसला बनाएंगे। अरे हाँ टूनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अब तो तूफान और बारिश हो रही है, अब ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं होगा। अब चलो टूनी, उस पेड़ की डाली के ऊपर जाकर बैठते हैं। ये कहकर वो दोनों उड़कर उस डाली के ऊपर जाकर बैठ जाती है। लेकिन टोना और टूनी को पता नहीं थी कि इस पेड़ की डाली के ऊपर घोंसला बनाने से उन लोगों के साथ क्या होगा। टोना, घोंसला बनाने के लिए हम दोनों ने तो एक अच्छा सा पेड़ को ढूंढ लिया है, लेकिन जब बारिश रुक जाएगी तब हमारी बच्ची के लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाना होगा। हाँ टूनी, बारिश जब रुक जाएगी तब हम और तुम मिलकर इसी पेड़ के ऊपर एक अच्छा सा घोंसला बना लेंगे। इसके बाद वो रात बीत जाती है और बारिश भी रुक जाती है। टोना और टूनी उसी पेड़ के ऊपर एक अच्छा सा घोंसला बनाने लगती है। वो दोनों जब घोंसला बना रही थी तभी कुछ तिनके जाकर उस पानी में गिर जाती है। तभी उस पानी के अंदर से एक जलपरी बाहर निकल आती है और आकर कहने लगती है, अरे मेरी इतना सुंदर तालाब को किसने इतना ज्यादा गंदा किया है। हर तरफ देखो गंदगी और गंदगी फैला हुआ है और तिनके भी गिरा हुआ है। ऐसा घिनौना हरकत कौन किया है। हाँ, वो जलपरी जब ये सब बातें कर रही थी तभी उस जलपरी की नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ती है। तभी वो परी देख पाती है दो पक्षी उनकी पेड़ के ऊपर घोंसला बना रही है। अरे कौन हो तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने के लिए। जाओ यहाँ से, तुम दोनों चले जाओ। अरे टूनी, उधर देखो, उस तालाब की तरफ देखो, वहाँ पर तो एक जलपरी है, हम दोनों को कुछ कह रही है। अरे तुम दोनों पक्षियाँ यहाँ से भाग जाओ, मेरी पेड़ की यहाँ से भाग जाओ। मेरी तो अंडा देने की समय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों इस पेड़ की डाली के ऊपर एक घोंसला बनाया है। अरे जंगल में इतना सारा पेड़ रहते हुए तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो। हाँ, और तो देखो, तुम दोनों ने इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर मेरी तो तालाब बिल्कुल गंदा कर चुकी हो। मैं तुम दोनों को भली भली कह रही हूँ, अगर तुम दोनों अपनी जान को बचाना चाहती हो तो इस पेड़ के ऊपर से चले जाओ। हम दोनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके यहाँ पर घोंसला बनाया है, हम दोनों को यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए दे दो। टूनी चिड़िया की अंडे में से बच्चा जब बाहर निकल कर आएगी तभी हम दोनों इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुम दोनों ने तो मेरी बात नहीं मानी। अब देखना, इस जंगल में और एक जन रहता है, उनको अगर पता चला कि तुम दोनों ने इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया तो तुम दोनों को तो वो मार ही डालेगी। ये कहकर वो जलपरी उस पानी के अंदर फिर से चली जाती है। वो जलपरी किसकी बात कर रही थी। अगर हम दोनों ने इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया तो कौन हम दोनों को क्षति पहुंचाना चाहेगी। अरे टूनी, मुझे लगती है इस जंगल में ऐसा कोई भी नहीं। मुझे लगती है वो जलपरी हमें झूठ कहकर इस जंगल से भगाना चाहती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है और टूनी चिड़िया अपनी घोंसले के अंदर 3 अंडा दे देती है। इधर वो जलपरी हर रोज टोना और टूनी को उस जंगल को छोड़कर जाने के लिए कहती थी। लेकिन एक दिन उस जंगल की एक गुफा के अंदर से एक इच्छाधारी नाग बाहर चला आता है और आकर कहने लगता है, मुझे तो भूख लगा है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अब मैं अपने सामने जिसको ही देख पाऊंगा मैं तो उसको ही खा लूंगा। ये कहते कहते वो इच्छाधारी नाग उस पेड़ के पास चला आता है। इसके बाद वो नाग उस पेड़ की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे वाह, उस पेड़ के ऊपर तो एक पक्षी की घोंसला लग रहा है। अब मैं जाता हूँ, जाकर पक्षी की मांस खा कर आती हूँ। ये कहकर वो इच्छाधारी नाग एक छोटी सी सांप की रूप ले लेती है और उस पेड़ के ऊपर उड़ने लगती है। वो सांप उस पेड़ के ऊपर उठकर देखती है वहाँ पर कोई पक्षी नहीं है। अरे इस घोंसले के ऊपर तो कोई पक्षी नहीं है, लेकिन इस घोंसले के अंदर 3 अंडा है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इन तीनों अंडों को खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूँ। ये कहकर वो सांप पक्षी की एक अंडा खाने लगती है। तभी उस तालाब के अंदर से वो जलपरी बाहर निकल कर आती है। वो जलपरी जब उस पेड़ की तरफ देखती है तो देखती है वहाँ पर एक सांप बैठी हुई है और वो सांप टूनी चिड़िया की एक अंडा खा लिया है। अरे उस पेड़ के ऊपर तो एक इच्छाधारी नाग बैठी हुई है और उसने तो एक अंडे को खा लिया। अगर मैंने तुरंत उसको नहीं भगाया तो वो तो सारे की सारे अंडा खा लेगी। ये कहकर वो जलपरी अपनी जादुई शक्ति से उस सांप को वहाँ से भगा देती है। तभी वो सांप उस पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर वो सांप अपने असली रूप में चली जाती है
और आकर कहने लगती है, अरे जलपरी, तूने मुझे पक्षी की अंडा खाने से रोका है, अब मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी जलपरी। ये कहकर वो इच्छाधारी नाग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टूनी और टोना जंगल से खाना खाकर अपनी घोंसले पर लौट कर आती है। तभी टोना और टूनी अपने घोंसले की तरफ देखती है, वहाँ पर एक अंडा नहीं है। अरे जलपरी, मुझे तो लगती है तुमने ही मेरी अंडे को खा लिया है, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाई हो? हाँ टोना और टूनी, तुम दोनों के पास अभी भी टाइम है, तुम दोनों अपने अंडे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों तो अपने अंडे को भी खोगे और अपनी जान भी खो दोगे, वरना वो फिर से यहाँ पर चला आएगा और आकर सब कुछ खा लेगा। ये कहकर वो जलपरी उस पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद बहुत दिन बीत जाती है और टूनी की अंडे में से छोटे छोटे दो बच्चा बाहर निकल कर आती है। दूसरी तरफ वो जलपरी फिर से तालाब की बाहर आती है और कुछ फल खाकर फिर से अपने तालाब के अंदर चली जाती है। इस तरह से हर रोज बीतने लगती है। अरे टूनी, चलो जंगल के बाहर चलो, कुछ खाना खा कर आते हैं। इस पेड़ के ऊपर फल तो जरूर है, लेकिन इस पेड़ की फल अगर खाया तो वो जलपरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और गुस्से में आकर हमारी बच्चा खा लिया तो। हाँ टोना, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अब चलो हम दोनों बाहर जाते हैं और कुछ खाना खा कर आते हैं। ये कहकर टोना और टूनी वहाँ से उड़कर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर वो इच्छाधारी नाग चला आता है और आकर कहने लगता है, अरे जलपरी तो पानी की बाहर नहीं है, अब मैं एक काम करती हूँ, अपने रूप बदल लेती हूँ और रूप बदलकर उस पेड़ के ऊपर उड़ जाती हूँ। इसके बाद वो इच्छाधारी नाग अपनी रूप बदलकर एक छोटी सी सांप की रूप ले लेती है और उस पेड़ के ऊपर उड़ने लगती है। तभी वो जलपरी पानी की बाहर चली आती है और आकर उस सांप को उस पेड़ के ऊपर देख लेती है। अरे वाह, टूनी चिड़िया की अंडे में से तो दो बच्चा बाहर निकल कर आई है, अब मैं इन दोनों बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। ये कहकर वो नाग जब उस बच्चों दोनों को खाने के लिए जाता है, तभी वो जलपरी अपनी जादुई शक्ति से वो छोटी छोटी दो बच्ची को अपने पास लेकर आती है। अरे जलपरी, तू फिर से चली आई है और आकर मुझे फिर से खाने से रोका है, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं तुझे मार ही डालूंगी जलपरी। ये कहकर वो इच्छाधारी नाग पेड़ के नीचे चली आती है और वहाँ पर छुप जाती है। तभी वहाँ पर टोना और टूनी चली आती है और आकर देखती है टोना और टूनी की बच्चा उस घोंसले पर नहीं है, उनकी बच्चा तो उस जलपरी की हाथों में है। ये देखकर टोना टूनी कहने लगती है, अरे दुष्ट जलपरी, तुमने तो मेरी एक अंडे को खा लिया है, अब मेरी बच्ची को भी खाना चाहती हो? तभी वो जलपरी अपनी जादुई शक्ति से वो छोटी छोटी दो बच्ची को उसके घोंसले पर भेज देती है। टोना टूनी अपनी दो बच्ची को बिल्कुल सुरक्षित देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टोना टूनी, तुम दोनों ने तो जलपरी को गलत समझा है, वो टोना और टूनी तो तुम्हारी बच्ची दोनों की जान बचाई है और इससे पहले भी तुम्हारी दो अंडों को भी बचाया था। तुम्हारे अंडे तो एक इच्छाधारी नाग आकर खा गया था और उनकी हाथ से वो जलपरी थी जिसने तुम्हारे अंडे दो को बचाई थी, और आज भी वो इच्छाधारी नाग आया था तुम्हारी बच्ची दोनों को खाने के लिए और उनकी हाथ से वो जलपरी थी जिसने तुम्हारी दो बच्ची की जान बचाई। तभी उस तालाब के अंदर से बहुत ही ज्यादा आवाजें आने लगती है, मुझे कोई बचा लो मुझे कोई। तभी वो टोना टूनी देखती है एक सांप आकर उस जलपरी को काट कर वहाँ से भाग रही है। बचा लो, मुझे कोई बचा लो, मुझे तो इस नाग की जहर से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, मुझे कोई बचा लो। टोना, मुझे अभी जाना होगा और उस जलपरी को बचाना होगा, वरना वो जलपरी तो मर ही जाएगी। ये कहकर वो टूनी चिड़िया अपने मुंह से कुछ औषधि लेकर आती है और उन औषधियों को उस जलपरी के हाथों में लगा देती है। कुछ ही देर में वो जलपरी ठीक हो जाती है। जलपरी, हम दोनों को क्षमा कर दो, हम दोनों ने मिलकर तुम्हें तो गलत समझे थे। अरे टोना टूनी, कोई बात नहीं है, तुम दोनों ने तो मिलकर मेरी जान बचाई है, अब तुम दोनों को समझ में आ रही है ना मैं क्यों तुम दोनों को इस पेड़ से जाने के लिए कहती थी? अब तो तुम दोनों को समझ में आ रही है ना? तुम दोनों जानती हो तुम्हारी तरह इस पेड़ में और दोनों पक्षियाँ रहती थी, लेकिन वो नागराज यहाँ पर नहीं रहने के लिए देती थी। मैं तुम दोनों को ये स्टोरी बताऊंगी, लेकिन दूसरे पार्ट में, ठीक है? एक जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसला बनाकर अपनी दो बच्चों के साथ रहा करती थी। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा रहा करता था।
वो कालू कौवा अपने सामने जिसको ही देखता था उसको ही खा लेता था। इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है। टूनी चिड़िया की छोटी छोटी दो बच्चों को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए टूनी चिड़िया अपनी दो बच्ची को उसी घोंसले पर छोड़कर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर वो दुष्ट कालू कौवा चला आता है। वो कालू कौवा आकर इधर उधर देखने लगता है और देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक बच्ची को खा लेता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर टूनी चिड़िया लौट कर आती है और आकर देखती है वहाँ पर उसकी एक बच्चा नहीं है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते कहने लगती है, अरे बच्चा, तुम्हारी भाई कहाँ पर गई है? मामा, तुम जब खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी तभी यहाँ पर एक दुष्ट कालू कौवा आया था और वो कालू कौवा आकर भाई को खाकर चला गया है माँ। ये बात सुनकर वो टूनी चिड़िया और भी ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अरे वो दुष्ट कालू कौवा ने मेरी बच्ची को खाकर चली गई है, मुझे तो उसको उचित शिक्षा दिलाना ही होगा, वरना वो कालू कौवा फिर से आएगी और मेरी बच्ची को फिर से खा लेगी। फिर मैं कैसे रहूंगी इस घोंसले के ऊपर? नहीं, मुझे रोने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो अपनी बच्ची को बचाना ही होगा। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती हूँ। जैसे ही वो कालू कौवा यहाँ पर आएगा तब मैं निकलकर उसको बहुत ही ज्यादा मारूंगी। ये कहकर वो टूनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वो कालू कौवा फिर से वहाँ पर चला आता है और आकर इधर उधर फिर से देखने लगता है। जब वो कालू कौवा दिखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, तभी वो कालू कौवा उस छोटी सी बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो टूनी चिड़िया बाहर निकल कर आती है और आकर उस कालू कौवा को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। कालू कौवा मार खा के नीचे गिर जाता है और गिरते ही कालू कौवा की मौत वहीं पर हो जाता है और इस तरह कालू कौवा की किए की सजा कालू कौवा को वहीं पर मिल जाता है। इसके बाद वो टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल में एक छोटी सी टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो टूनी चिड़िया उसी जंगल की एक बड़ा सा पेड़ में एक घर बनाकर रहा करती थी। एक दिन रात में टूनी चिड़िया की घर के सामने एक छोटी सी चिड़िया चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे क्या कोई घर के अंदर है? अगर घर के अंदर कोई है तो मुझे अपने घर में ले लो, मेरी मदद करो, दरवाजा तो खोला है, तुम घर के अंदर चली आओ। अरे कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आई हो, बताओ मुझे। टूनी चिड़िया, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, लेकिन रात होने के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में चली आई। मैं जब जा रही थी तब मुझे तुम्हारे घर को दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे घर के अंदर चली आई। आज रात तुम्हारे घर में मुझे रहने दो। और हाँ टूनी, मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उस छोटी सी पक्षी के मुंह से ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया के मन में बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है, इसलिए कुछ दाने उस छोटी सी पक्षी को दे देती है। वो छोटी सी चिड़िया सारे की सारे दाना खा लेती है। इसके बाद टूनी चिड़िया की बिस्तर के ऊपर जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। तब वो छोटी सी चिड़िया टूनी चिड़िया को कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद किया। तुमने तो मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी और हमें खाने के लिए कुछ दाना भी दे दी। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक सवालों की जवाब देनी होगी तुम्हें। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे सामने 3 रास्ता है। एक रास्ते में एक जहरीली सांप है और दूसरे रास्ते में बहुत सारा सोने की सिक्का है और तीसरे रास्ते पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली रास्ता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ पर जाओगे? तब टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, वो तो एक छोटी सी चिड़िया है, उनको सोने की सिक्का से क्या काम है, और ज्यादा लालच तो अच्छी भी नहीं होगी। और एक रास्ते पर तो जहरीली सांप है, अगर मुझे काट लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। उससे अच्छा होगा मैं खाली रास्ते पर ही चली जाऊंगी। अरे छोटी सी चिड़िया, मैं तो उस खाली रास्ते पर ही जाना पसंद करूंगी। मुझे सोने की सिक्का की कोई लालच नहीं है। मैं तो छोटी सी पक्षी हूँ,
मुझसे सोने की सिक्का से क्या कम है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। टूनी चिड़िया की मुँह से ये बातें सुनकर वो छोटी सी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होकर वो पक्षी अपने असली रूप में चली जाती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और बहुत ही साफ दिल की हो, तुम्हें तो कुछ लालच भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई हांडी देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जो हांडी दूंगी, उस हांडी से तुम्हें जब भी कुछ खाने की मन करेगी तब तुम उससे मांग लेना, तभी तुम्हारे सामने सारे की सारे खाना आ जाएगी। इसके बाद वो परी अपनी जादुई शक्ति से उस टूनी चिड़िया को एक जादुई हंडी दे देती है और हंडी देकर वो परी वहाँ से चली जाती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।